يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হক ও বাতিল, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ, জান্নাত জাহান্নাম, এই প্রত্যেকটি কথার একটি আরেকটিকে এটা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যে একটা খারাপ আর একটা ভালো। তো আমরা এই শব্দ দুটিকে আজীবন কাল থেকে ব্যবহার করে আসছি, কিন্তু সেটাকে মৌখিকভাবে মুখে আমরা স্বীকার করি যে না, এই কথাগুলো আমরা মানি কিংবা জানি, কিন্তু এর ওপরে যখন আমলের প্রশ্ন চলে আসে তখন কিন্তু আমরা নিজের চরিত্রের দিক থেকে কিংবা নিজের বিবেকের দিক থেকে উল্টোপাল্টা কাজ শুরু করে দিই। যেটা হক সেটার দিকে না গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বাতিলের দিকে আমরা অগ্রসর হয়ে গেলাম, কি বাতিলের দিক থেকে হকের দিকে অগ্রসর হলাম। সময় অনুপাতে এগুলো পরিবর্তনশীল আমাদের মধ্যে আছে। তো আজ থেকে কয়েক বছর আগে ডাক্তার জাকির নায়েক নামে একজন ব্যক্তি, যে ডাক্তারি পেশা ছিল, তার ডাক্তারি প্র্যাকটিস করত, সেই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ইসলামের যে এই প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্মে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই ইসলামের প্ল্যাটফর্মে আসার সঙ্গে সঙ্গে আইআরএফ বলে একটা সংগঠন সে তৈরি করে, যেখান থেকে একটি চ্যানেল পিস টিভি নামে চালু করে। তো আইআরএফ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন। তো এই যে ডাক্তার সাহেব ইসলামকে নিয়ে রিসার্চ করার জন্য এই যে টিভির প্রয়োজন হয়েছিল, তার প্রয়োজন হয়েছিল একটা চ্যানেলের। এই কারণের জন্যে যে তামাম ভারতবর্ষে সেই মুহূর্তে যাতে তার কথা, তার চেহারা, তার যে ইসলাম প্রচারের যে তারিকা, সেই তারিকাকে মুসলমান যারা আমাদের ভারতবর্ষে আছে তাদের মধ্যে প্রবেশ করানো। একটা সময় এমন আসলো যে তামাম ভারতবর্ষ নাই, এই ভারতবর্ষের আশেপাশের যে দেশগুলো আছে সেগুলো নয়, তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন। চাই বাংলাদেশ বলুন, শ্রীলঙ্কা বলুন, পাকিস্তান বলুন, কিংবা আফগানিস্তান কিংবা মায়ানমার, যেখানেই বলুন না কেন, তেনার টার্গেট ইন্ডিয়া ব্যতীত তখন বাইরে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে যারা ডাক্তার জাকির নায়েক সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, ডাক্তার জাকির নায়েককে মানেন, তো তারা কিন্তু শুধুমাত্র পিস টিভিকে কেন্দ্র করে ডাক্তার জাকির নায়েককে চিনেছেন, কিংবা তার যে ফিরকা, আহলে হাদিস ফিরকা বা ওয়াহাবি বা এজিদি ফিরকা, এই ফিরকায় অগ্রসর হয় লাখের লাখ যুবক শ্রেণীর ছেলে। তো যাই হোক, আমাকে আমার এই চ্যানেলের যে ভিডিওগুলো ডাক্তার জাকির নায়েক সম্বন্ধে, আমি তার সত্য সম্বন্ধে যেভাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে শুরু করেছি, তাতে কিছু কিছু আহলে হাদিস বলুন, চাই যুবক ছেলে বলুন, তারা তো ইসলামের জন্যে নয়, তারা নিজের নাম কামানোর জন্য, নিজের নামকে ফোটানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। তো তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এবং আমাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে যে ডাক্তার জাকির নায়েকের দ্বারা হাজারো অমুসলিম ইসলামে দাখিল হলো, তাকে তুমি কিভাবে উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারো? এটা হচ্ছে তাদের প্রথম প্রশ্ন।
দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ডাক্তার জাকির নায়ক যদি না আসতো আমাদের এই ভারতবর্ষের বুকে, ডাক্তার জাকির নায়ক যদি ইসলাম না প্রচার করতো, তো আমরা দিন সম্বন্ধে বুঝতেই পারতাম না। শুধু মাজার পূজা করতাম, পীর পূজা করতাম, শিরক করতাম, বিদাত করতাম। তো আমি হেসে বলি যে হক কখনো বাতিল হবে না, আর বাতিল কখনো হক হবে না। এমনকি আমি তাদেরকে আজ থেকে 5-6 বছর আগে থেকে বলে আসছি যে ডাক্তার জাকির নায়ক নামের যে জীবটি, এই জীবটি ইসলামের নামে ইনকাম শুরু করেছিল, ইসলামকে বিক্রি করতে শুরু করেছিল। আমার নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এবং তার যে আহলে বাইত, তার গুস্তাখি করার জন্য এরা এসেছে। তার দুনিয়া থেকে আমার নবীর কালামকে, আল্লাহর কালামকে এবং আহলে বাইতকে ধ্বংস করার জন্যে এই ব্যক্তি উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু তোমাদের এখনও চোখ দিয়েছে আল্লাহ, তোমরা চোখ খোলো। কিন্তু তারা শুনতে নারাজ, তারা বুঝতে নারাজ। এমনকি আমাকে হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় যে দেখো এই যে সৎ ব্যক্তি, এই সৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে তুমি যদি এইভাবে বলতে থাকো, তাহলে হয়তো বা একদিন তোমার উপরে আক্রমণ হতেই পারে। তো আমি তো জানি যে ওয়াহাবি সংগঠন বা আহলে হাদিস একটা উগ্রবাদী সংগঠন, যারা ইসলামের মধ্যে কখনো ছিল না, থাকবে না ইনশাল্লাহ। তো সেসব ভাইদেরকে আমি বলি যে তোমরা তো আমাদেরকে বলো যে মুকাল্লিদ, অর্থাৎ আমরা পীর আউলিয়া কেরামদেরকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করি, তাদের কলকে আমরা মেনে নিই, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে হাদিস আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিই। তো সেটা পরের কথা, কিন্তু তোমাদেরকে আমি প্রশ্ন করছি, তোমরা তো আর অন্ধবিশ্বাসী নয়, মুকাল্লিদ নাও। তাহলে ডাক্তার জাকির নায়েকের যে সম্বন্ধে যেগুলো আমি বলি, সেগুলো প্রুফ সহ, প্রমাণ সহ আমি কিন্তু বলি। তো তোমাদের যে প্রশ্ন আমাকে করেছিলে, তো সেই প্রশ্নের উত্তর হলো এইটাই যে ডাক্তার জাকির নায়ক অ্যাকচুয়াল এর ভেতরের যে অস্তিত্ব, সেটা সত্য না মিথ্যা। চলুন আগে তার মুখ থেকে আমরা দেখে নিই যে সে এজিদি কিনা। সে তার সহকর্মী এবং তার বডিগার্ড, তাদের যে মুখের কথা, এটা আমার নয়, তাদের মুখের কথা। এবং কেউ যদি বলে এটা মিথ্যা, তার দায়িত্ব এটাই যে এই যে ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি, সেই ভিডিওগুলোকে নকল বলা কিংবা এটা মিথ্যা প্রমাণ করা তার দায়িত্ব। তো আগে আপনারা দেখুন এই যে জীবিত ব্যক্তিগুলো এখনও জীবিত আছে, সেই জীবিত ব্যক্তির কথা শুনুন, আমার কথা শোনার প্রয়োজন নাই। ডাক্তার জাকির নায়ক ওয়াহাবি কিনা, এমন প্রশ্ন এসেছে যে ওয়াহাবি কেন বলছো ডাক্তার জাকির নায়ককে। তো আমি না বলে ডাক্তার জাকির নায়ক যদি বলে যে না আমি ওয়াহাবি, তাতে আপনাদের মানতে মনে হয় অসুবিধা হবে না। ডাক্তার জাকির নায়ক যদি বলে যে আমি এজিদি, কিংবা আদার্স আহলে হাদিস ফিরকার যত আলেমগণ আছেন, তারা যদি বলেন যে আমরা এজিদি, তা আপনাদের মনে হয় মানতে অসুবিধা হবে না, যেহেতু সেটা আমার কথা হবে না, সেটা তাদেরই কথা। আপনারা যেটা মানুষকে বলেন তার পেছনের রূপ আপনাদের ভয়ঙ্কর। এই জন্য আপনারা ইজিদকে রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন যে আল্লাহর রহমত তার উপরে ছিল, নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। তো এই বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব। আগে আপনারা আজকের এই ভিডিওতে প্রমাণ নিন যে ডাক্তার জাকির নায়ক কত বড় নাটকবাজ, আর সে এজিদি কিনা, সে এবং সে ওয়াহাবি কিনা। তো চলুন যাই আগে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিই। I've been to USA several times. Once when I went to USA after 9/11 in the year 2003, I had gone to Los Angeles. I was invited to be given an award by a Muslim society, Muslim organization. And when I landed in the Los Angeles airport in USA, I'm prepared the way I'm dressed up. Coat, tie, suit, but kufia, cap, beard, very good target. I wear this cap, beard because it's a commandment of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trousers above the ankle, commandment of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wearing the cap, it's a sunnah.
At the same time, wearing a suit and a tie, looking modern, no problem, it's not haram. But a soft target. And I'm prepared, I should be prepared. When I land in the Los Angeles airport, the immigration, oh, cap and a beard, go for inquiry. There they asked me a question, what is the profession? I said, my profession is to spread truth. I'm a Dai. Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and truth shall free you. Mention the Gospel of John. So I'm a Dai. Who are you? What type of a Muslim are you? I said, I'm a Muslim. No, what sect of Muslim are you? Are you a Wahhabi? I said, yes, I'm Wahhabi. I'm Abdul Wahab. Allah subhanahu wa ta'ala is called as Wahhab the bestower. I'm Abdul Wahab. I'm a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. In that context, I'm a Wahhabi. But by label, I'm a Muslim. So what type of Muslim? Shia Muslim, Sunni Muslim? I said, in Islam there is no sect. लेकिन अच्छे इंसान को लानत भेजते भाई साहब इतना खड़ोगे बात में ऊंची आवाज में आखिर के दिन पे अल्लाह ताला जब उन्हें पूछेंगे कि क्या सबूत था आपके पास और मैंने ये कहा फिर मैंने वापस आके जितने दारुल उलूम में अफसर देवबंद नदवा सब लोग खत लिखा अहले हदीस जमात इस्लामी सब लोग लिखा मैंने कहा सही कहा बोला रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह की पीस बतन आम तौर पे सहाबा को कहते लेकिन नॉन सहाबा को भी कह सकते यजीद के बारे में इख्तिलाफ है कुछ कहते करना चाहिए कुछ नहीं इमाम गजाली फरमाते हैं क्या रहीमुल्लाह कहना मुस्तहब है इमाम गजाली तब बता दिया मुझे और फिर मैंने कहा जो भी सही और कहा कि आप देखेंगे जो करबला की जंग थी कुफा के लोग ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाया और उनके साथ साजिश की अगर आप सही हदीस पढ़ते उसके अंदर लिखा थे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो तीन चीज चाहते थे कि मैं हजरत अली के नाम पे बैठ लूं या मुझे मक्का जाने की दो मैं सारी बाकी जिंदगी अल्लाह के नाम में गुजारूंगा या मुझे कोई ऐसे देश पे छोड़ो जहां मैं जंग कर सकूं तो वो यजीद की इज्जत करने लगे आखिर में लेकिन कुफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा तो उनने साजिश की हजरत हुसैन के साथ और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का रज़ियल्लाहु अन्हु मैं उस पर लानत भेजता हूं जाकिर नायक जिसकी वजह से कई युवा आतंकवादी हो गए, जिसकी बातों को सुनकर आतंक फैल रहा है, जिसकी बोल में जहर है और जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके साथ काम करने वाले जुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये फॉलोअर हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे जाकिर के, लेकिन अब उनसे नफरत करते हैं। जुबैर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? जी, पर्दे के पीछे मैंने आज तक आई एम 38 राइट नाउ, अब तक की लाइफ में मैंने इन जैसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, आई वर्क विद बिग स्टार शाहरुख सलमान, इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज़ और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनको अपनी जो नॉलेज है उस पर घमंड है। आदमी जितना बड़ा बनता है उतना झुक जाना चाहिए, वो नहीं है। और मैं तमाम जनता से, जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनको चंदा देते हैं, मैं हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते कहता हूं कि बॉस, किसी गरीब के पेट में खाना डाल दो, आप खुद ही मिलजुल कर स्कूल्स बना दो, चैरिटी, ज़कात का पैसा जो ना यहाँ यूज करो। IRF को, डॉक्टर जाकिर नाइक को मत दो बॉस, ये अपनी प्रॉपर्टीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इनके, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बोलना चाहूंगा कि इनके CA को अरेस्ट करो। ये पहले कहाँ थे ये लोग? अभी सत्यपाल सिंह साहब ये बात कर रहे हैं कि ये पूना के कमिश्नर थे, तब इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने ये किया। जब मुंबई के कमिश्नर बने तब इन्होंने क्या किया? जाकिर नाइक तब मुंबई में थे। जाकिर नाइक ने बहुत प्री प्लान तरीके से इंडिया प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं पीस टीवी में, और तमाम तरह के जो इसके शो होते हैं जाकिर नाइक के, उसको आपने हैंडल किया होगा, उसका कंटेंट तैयार कई बार आपने किया होगा। आपको उस दौरान क्या लगता था कि क्या कर रहे हैं आप, आपसे क्या करवाया जा रहा है और जाकिर नाइक करना क्या चाहता है? देखिए, इनका मकसद है कि इस्लाम की जो मैं ये बता रहा हूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं कि बॉस, मैं वहां ज्वाइन किया था कि भाई इस्लाम में जो शांति, हर चीज, इतना सारा चीज चल रही है, तो एक शांति का मकसद जो है ना लोगों तक पहुंचे। वहां जाने के बाद में पता चला कि भैया आपको खीर दी जाएगी लेकिन टॉयलेट के लोटे में, तो ये ऐसी खीर कोई नहीं खाएगा भाई। नहीं, समझ में नहीं, लोग नहीं समझ पा रहे जो आप कहना चाहते हैं। आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? आप अगर अंदर की कुछ बात जानते हैं, समझते हैं और मुखर होकर सामने आए हैं, निडर होकर सामने आए हैं और कह रहे हैं आप खुद की, आपको डर है, आप सामने आकर बोल रहे हैं, तो फिर आप पूरी बात बताइए ताकि लोग समझें। देखिए, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे इनकी प्रॉपर्टीज बन रही है, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पैसे लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं भेजे हैं। कहां से आ रहे हैं? यही चीज मुझे खलती थी, मुझे तकलीफ होती, और ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से लोग दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर चंदा दे रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि किसी ने 500 रुपए का पे ऑर्डर भेजा था, वो इन्होंने रिटर्न करा। इतना घमंड है इनको कि हमको 500 रुपए और 1000 रुपए का चंदा नहीं चाहिए, हमको लाखों में और हजारों में चाहिए।
क्या करता है जाकिर नाइक इन पैसों का? और सर इनके कैमरा इक्विपमेंट्स देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदता है। इनका लाइफस्टाइल देखिए, ये इंडिया में जब घूमता है ना तो इकोनॉमिक क्लास में घूमता है। मैं इनका डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूं, हिपोक्रेसी बता रहा हूं। ये जो इस्लाम की प्रीचिंग बताते हैं ना, खुद फॉलो नहीं करते। नमाज कजा होने का टाइम होता है तब जाके ये नमाज पढ़ते हैं। इनको 10 बार कोई जाके रिमाइंड करवाता है कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं। इनके ऑफिस के सामने मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, बहुत ये है। जब मैंने खुद वहां देखा कि भैया ये बंदा मस्जिद में जाता ही नहीं है। जुबैर ठीक है, तो ये कौन सा इस्लाम का प्रचार कर रहा है? जुबैर ठीक है, पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीता है, उससे आपको नाराजगी है, लेकिन इसका मकसद क्या है? किस मकसद के लिए काम करता है जाकिर नाइक? देखिए इसका मकसद जो है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम का प्रचारक है। ये खुद को प्रमोट करता है। इनके जितने पोस्टर जो प्लेआउट्स बनते थे, ये खुद को प्रमोट करना चाहता है और खुद ही को आगे रख के सारी चीज मैं। और भैया देखिए ये चीजें है ना, और इनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, आईपीएस आईएएस ब्यूरोक्रेट्स। मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि इनका चैनल इलीगल चलता है। मैं तब से आवाज उठा रहा हूं कि भैया अगर इस्लाम जो है ना, मैंने जो इस्लाम पढ़ा है कि बॉस आप सच बात करो, चाहे वो अपने या अपनों के या खुद के खिलाफ हो। मैंने ये इस्लाम में पढ़ा है। और जब ये चैनल इलीगल चल रहा है, इनके मेरे मेल्स है सारे, इनकी प्लेलिस्ट इंडिया से जाती है, इनके टेप्स इंडिया से जाते हैं। जब इनके टेप्स फंस जाते हैं तो कस्टम्स वाले इनके फॉलोअर्स को, इनके चाहने वाले, इनके दोस्त, ये इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो हर फील्ड में इनके चाहने वाले हैं। और मैं जो ये बात कर रहा हूं, सच बात कर रहा हूं, मुझसे सब नाराज ही हो रहे हैं। जुबैर, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जुबैर ये बताइए कि जिस तरह के भाषण जाकिर नाइक देता है, आप भी कई बार इसके कार्यक्रम के बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने काम किया होगा, आपको उस वक्त नहीं लगा कि इस तरह का भाषण देना, इस तरह के उपदेश देना, इस तरह की बातें करना, लोगों को भड़काना, बड़गलाना, ये सब गलत है? देखिए ये मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। भड़काने वाली बात ये अभी ये पूरी दुनिया में एक परसेप्शन हो गया है कि भैया जिसने भी इस्लाम की बात की वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। तो बस आप साध्वी प्रज्ञा है उनको पकड़िए, असीमानंद है उनके बारे में ये एक ऐसा हाफ एन आवर 1 घंटे का प्रोग्राम चलाएं ना। डोंट बी पार्शियल। आप दिखा रहे हो तो सच सब जगह दिखाइए। जुबैर अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, तो इन तमाम जिन लोगों के नाम आपने गिनवाए, सबके बारे में खबरें छपती हैं, सबकी आलोचना होती है। कई बार तो पार्टी के नेता ही उसकी आलोचना करते हैं। सवाल मेरा यह है कि जिस तरह के मकसद को लेकर काम करता है जाकिर नाइक, आपने क्योंकि बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसके चैनल में काम किया है, आपका अनुभव कैसा रहा? किस मकसद से यह काम करता था? आखिर ये क्या करना चाहता है? सर ये सेल्फ सेंट्रिक इंसान है और मैं मेरा अनुभव बताता हूं। पैथेटिक एक्सपीरियंस मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में जो मैंने एक्सपर्टीज हासिल की है, मेरे करियर का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करना। और इनके अतराफ में जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लोग इनसे डरते हैं, इनसे दबके रहते हैं, और पता नहीं ये अपने आप को डिक्टेटर ही बोलता है। ऑनेस्टली मैंने खुद कई इनकी मीटिंग्स अटेंड की है जो पर्सनल ऑफिस की होती थी। मैं डिक्टेटर हूं, मैं हिटलर हूं, मैं ये हूं। अरे भैया ये सेडिस इंसान है। इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, प्लीज, मैं भी इनका फॉलोअर, इनका फैन हुआ करता था। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि बॉस सच जानिए कि जो बंदा इस बंदे को आतंकवाद को लेकर जो व्यू है जाकिर नाइक के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आतंकवाद को व्यू तो मेरे भी, हर किसी के अपने व्यू पॉइंट होते हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के अगर मीडिया ये सारे लोग उसको आधा दिखाए तो पूरा दिखाए ना। मैं मेरी उनके लेक्चर से आपको इसीलिए तो बिठाया है। आप पूरी बात कहिए ना, आप कह नहीं रहे हैं, आप कुछ और बात करने लग जाते हैं। आप पूरी बात बताइए ना, आतंकवाद को लेकर वो क्या सोचता है, क्योंकि हम इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। आपने बहुत नजदीक रह के काम किया उसके साथ, उसके भाषण से, उसकी बातों से तो समझ ही रहे हैं लोग। आतंकवाद जो है ना, ये एक वाहियात चीज है और सबसे गंदी घिनौनी चीज है। और ये पता नहीं कहां से नया कल्चर आ गया है कि आप अल्लाह के नाम पे दूसरों को मारो। ये इस्लाम में कहीं नहीं है। जाकिर नाइक तो कहता है ना, ये मैंने देखिए जाकिर नाइक ये कहता है बॉस कि चोर को देख के, पुलिस को देख के चोर टेरराइज हो जाता है, डर जाता है। टेरर का मतलब है डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। अगर मैं सच्चा मुस्लिम हूं तो मुझे देख के कोई चोर, उचक्का, लफंगा, रेपिस्ट मुझसे डरना चाहिए, विच इज फैक्ट। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। लेकिन जो आगे बढ़ के काफी बातें करते हैं और बातें करते हैं कि हर किसी को तो बॉस आप ऐसी डबल मीनिंग बातें मत करिए कि जिससे रॉन्ग संदेश लोगों तक जाए। आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर हो, लोग आपको फॉलो करते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, आप ऐसी बात क्यों करते हो डबल मीनिंग वाली कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, जब आपको पता है। एक सवाल बहुत संक्षिप्त में जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं जुबैर, क्योंकि आप बार बार बात करते करते कुछ और बात करने लग जाते हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। जुबैर मुझे यह बताइए कि जाकिर नाइक पर जो धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी थी या है? देखिए ये जो चैनल पर चलता था ना, ये लोग कलमा पढ़ते थे, ये क्या होता था बॉस, ये कई महीना पहले किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसकी रियलिटी भी बताता हूं बॉस। इसी के नाम पे लोगों ने बहुत उमड़ के इसको फॉलो किया है। ये
कई महीने हफ्ते पहले ये इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके होते थे, ये पब्लिक फोरम में जाकिर नाइक को हाईलाइट कर, ये खुद को हाईलाइट करने के लिए मीडिया ये अपने शो में उनको बुलाता था और फिर कलमा पढ़वाता था। तो भाई इनके शो में आके लाइव देख के ऐसा किसी ने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके शो में आया और मैंने डायरेक्ट ओपिनियन बना दिया अच्छा आप ही सही हो, ठीक है, ये बहुत इनकी पहले से ये इस चीज के ऊपर वर्क होता है। बाद में इनको कैमरे के सामने लाया जाता है लोगों को दुनिया के दिखाने के लिए कि बहुत जाकिर नायक जो है ना करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को इस्लाम में लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका, और साथ ही जाकिर नाइक को लेकर जो बातें आपने कही हैं, मेरे ख्याल से जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं देख रहे हैं, खासतौर से वो समुदाय जिसको सीधे तौर पर उपदेश जाकिर नाइक देता है और जिनको बरगलाने की कोशिश करता है और जिनकी जहन में, जिनके अंदर ये बीज बो देता है कि अगर आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए, वो समझ पाए होंगे जाकिर नाइक दरअसल किस तरह का शख्स है। ढाका आतंकी हमले के बाद से विवादों में आए जाकिर नाइक के भारत लौटने पर सस्पेंस बना हुआ है। कल उन्हें भारत आना था, लेकिन अब उनका भारत लौटना कुछ हफ्तों के लिए टल गया। इसी बीच जाकिर नाइक के पूर्व बॉडीगार्ड ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में साजिद शेख नाम के इस बॉडीगार्ड ने जाकिर नाइक पर गंभीर आरोप लगाए। साजिद शेख ने इल्जाम लगाया कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। उसने यह भी दावा किया कि जाकिर नाइक को इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं, उनके लिए लेक्चर कोई और लिखता है, और तो और उनकी सभाओं में सवाल पूछने वाले भी पहले से फिक्स्ड होते हैं। मनी लॉन्ड्री करता ही है पैसे की, पैसा उठाता है कि मैं इतने नॉन मुस्लिम को मैंने मुस्लिम बना दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। वो शेख लोग खुश होते उस पर, बोले क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। ये इसका तो बनौटी प्रोग्राम है। बाकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ये इस्लामिक रास्कल फाउंडेशन है। टोटल बनावटी आदमी है। कहाँ से पैसा आता है और क्यों किया जाता है? ऑल वर्ल्ड से आता है। ये मुस्लिम की मदद करने के लिए आता है, मुसलमानों की मदद करने के लिए आता है कि जो भी है, जैसे भी है वो लोग, जो गरीब है वो लोग की तुम मदद करो। लेकिन ये किसकी मदद नहीं करता है, ये सिर्फ अपना मशीनरी, पिक्चर के जो सेट रहते हैं, मशीनें, वीडियो वो सब सीडी वीडी ये सब बनाने के लिए वो फंडिंग लेता है। बाकी ऐसा वो किसकी हेल्प नहीं करता। वो किस तरह की शख्सियत है जाकिर नाइक, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? एक्चुअली इसका जो प्रोग्राम जो होता है चूनाभट्टी में, जो सुमैया ग्राउंड में जो इसका प्रोग्राम होता है, वो टोटल बनावटी है। कोई आदमी वहाँ हिंदू से मुस्लिम नहीं बनता है। जो मुस्लिम ही रहते हैं वहाँ आके वापस मुस्लिम बनते हैं। यानी सऊदी, दुबई यहाँ के शेख लोग को दिखाने के लिए इसका पूरा गेम प्रिपेयर्ड है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका प्रोग्राम के पहले लेडीज़ लोग के ऐसा मेकअप करता है, लाली पाउडर लगा के उतरता है प्रोग्राम में। इसका मेकअप मैन मेरा दोस्त ही है, वो सब मेरे को बताया था, बोले ऐसा ऐसा हरकतें करता ही है। এই যে ভিডিওগুলো আপনারা দেখলেন এবং আমি যে ভিডিওগুলো দিলাম, এগুলাতে এই ভিডিওগুলোতে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তো আপনারা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, আপনারা গুগল সার্চ করে দেখতে পারেন, ইউটিউব দেখতে পারেন যে সে ভিডিওগুলো আমার তৈরি নাকি অন্যজনার। তো আশা করি আপনারা মনে হয় এই ভিডিওগুলো দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে আমার কতটুকু কথা সত্য এবং কতটুকু কথা মিথ্যা। তো এই ভিডিওগুলোর পর আমি ইমামে হুসেন রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্বন্ধে এবং কারবালা সম্বন্ধে যে ঘটনা এবং আহলে হাদিস কিংবা ওয়াহাবিদের যে সেই বিষয়ে আমি ইমামে হুসেন এবং কারবালা সম্বন্ধে যে ইমান, যে আকীদা, সেটা আমি পরপর আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ সেটা উন্মোচন করব। তাহলে আপনারা বুঝে যাবেন যে এদের যে শয়তানি রূপ, শয়তানি চেহারা কতখানি ভয়ঙ্কর, আর ইসলামে কত ক্ষতি এরা করে এসেছে এবং করছে। তো আমি সেই সব মুসলমান ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে যারা এই রাস্তায় আছে, যারা এই আহলে হাদিস ফিরকায় আছে, যারা এই ওহাবিয়াতের মধ্যে আছে, এজিদিয়াতের মধ্যে আছে, এখনও সময় আছে, সেই সব ভাইদেরকে আপনার ভাই হলে আপনি সামলান, আপনার ছেলে হলে আপনারা সামলান, বোঝান তাদেরকে যে এটা আমাদের দিন নয়, দিন আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা দিয়েছে সেটা দিন। আমাদেরকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে এই আহলে হাদিস ফিরকার যত নামধারী বক্তা আছে, নামধারী যে ইসলামের প্রচারক আছে, নাটকবাজ আছে। এই নাটকের মধ্যে আমরা পড়ে গিয়েছি। এই নাটক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আসল দিন এবং আসল নবীর কল, আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর যে কল, সে কলকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তো এই বলে আজকের এই পর্বটাকে শেষ করছি। এই পর্বকে কেন্দ্র করে আমি পরপর আপনাদেরকে এজিদিয়াতের, ওয়াহাবিয়াতের যে চেহারা
সে চেহারা এবং তার রাস্তায় কারা কারা কাজ করছে এবং কেন করছে সেটা জানাতে থাকবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম আ রহমতুল্লাহি আ বারাকাতুহু।